Okay. Good morning, student. Today we have to discuss about the new part of this chapter, and that particular part is nothing but the pollen-pistil interaction. In the previous class, we discussed contrivances for pollination. Before that, we discussed different types of that particular pollination. Now, what is actually the pollination? We know pollination is nothing but the transfer of pollen grain from anther to stigma, right? Now, in this particular pollen-pistil interaction, we have to discuss what has happened after the deposition of pollen grain over the stigma. यानी एक बार pollen grain stigma के ऊपर fall down हो गए तो उसके बाद क्या होगा? Up to the fertilization or up to the entry of pollen tube within the ovule. That is called as, or that all events which may get happening after the deposition of pollen grain over the stigma up to the entry of pollen tube within the ovule, that is considered as pollen-pistil interaction. Now, I will write here all the events after the deposition of pollen grain over the stigma up to the entry of pollen tube inside the ovule. What I write here? All the events, steps. एक बार पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन हो गया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा अप टू द, तो वो कहा था अप टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल. So here is that this one is nothing but the star, this one is nothing but the ovary, so this is the style, and here this one is nothing but the stigma. So here there should be a presence of ovule, so this is actually the ovary, then these all are nothing but the ovules, this one is nothing but the style, and this one is nothing but stigma. So what is actually the pollination? In that particular pollination, pollen grain get fall over the stigma. So pollen grain यहाँ पर fall down हो गए. After the pollen grain deposition over the stigma, what is happening that this pollen grain get germinate and pollen tube going to be produces there, and that particular pollen tube enter inside the ovule. तो जैसे ही pollen grain stigma के ऊपर deposit होते हैं, stigma that may going to secrete sugary substance. And that sugary substance get absorbed by pollen grain, and then pollen grain get germinate. We already told you in case of that development of the development of male gametophyte portion. We already discussed in that how that particular pollen tube get comes out through that pollen grains. So here is that. Then, so these events after the deposition of pollen grain up to the entry of pollen tube, what is happening that we consider as pollen-pistil interaction. Now again one of the question get arise, can all the pollen grains present on stigma germinate? क्या सभी के सभी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन हुए वो जर्मिनेट होते हैं? नो, ऑब्वियसली नॉट. सो व्हाट इज हैपन दैट in pollination different kinds of pollen grains of different plants they may get fall over the stigma. उसी प्लांट के पोलन ग्रेन उसके ऊपर फॉल डाउन होते हैं ऐसा नहीं है. जो भी आजू बाजू में हवा में प्रेजेंट है, जो भी इंसेक्ट्स ला रहे हैं, हर एक प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स बैठते हैं तो किसी भी प्लांट के साथ बैठ सकते हैं, तो वहां से उसके पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन होते हैं. दैट मीन्स इन पॉलिनेशन ऑलवेज not only a right type of pollen grain get fall over the stigma, but sometime wrong type of pollen grain also get fall down over the stigma. So what is the meaning of this wrong and right type of the pollen grain? So here is that what is the meaning of this wrong and right type of the pollen grain is there. So the answer of this particular question is obviously no. Why? अब ये no है तो क्यों? Because what it may be the pollen grains which may get fall over the stigma,
there are two different kinds of the pollen grains are there. One of them is nothing but the wrong type and another one is nothing but the right type. So wrong type and right type, what is that? The wrong type and right type, this type of the pollen grain where this type of that particular pollen grain, we can say that if suppose that the category of this particular pollen grain get depend over the nature of that particular plant. वो नेचर कैसा है प्लांट का, यानी वो प्लांट के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होने वाला है या उसे कौन सा पॉलिनेशन चाहिए, इसके ऊपर ये राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन के डिसीजन होता है. हाउ? सपोज दैट सो दिस पर्टिकुलर स्टिग्मा इज देयर, सो दैट पर्टिकुलर स्टिग्मा एंड दिस वन इज नथिंग बट द प्लांट नंबर ए. ये ए नाम का प्लांट है जैसे मान लीजिए यहाँ, और ये ए नाम के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है, यानी दैट पर्टिकुलर प्लांट ओनली कैरिड आउट द सेल्फ पॉलिनेशन. अब ये ए नाम का प्लांट है, अब ये नाम के प्लांट में ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है. अब इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है, क्रॉस पॉलिनेशन ये उसे फेवर नहीं करता या नहीं होने देने जाता है. इसके बाद क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलन ग्रेन फाइंड आउट हो गए. अब यहाँ पर ये ए टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन्स है जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ वो, और ये these all are nothing but ये ए टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन है, ये बी टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन. जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सी टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन होगा, और सो दिस वन इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन, दिस वन इज नथिंग बट डी टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन. यानी इस स्टिग्मा के ऊपर चार अलग अलग प्लांट्स के पोलन ग्रेन फॉल डाउन हुए हैं. तो चारों के चारों पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट नहीं होंगे, चार अलग अलग प्लांट्स के पोलन ग्रेन नहीं होंगे जर्मिनेट. इसके ऊपर सिर्फ उसी प्लांट का पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो पाएगा क्योंकि दैट पर्टिकुलर प्लांट वांट्स सेल्फ पॉलिनेशन. इसके ऊपर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होना है. तो इसके कारण जो अदर प्लांट्स के पोलन ग्रेन उसके ऊपर फॉल डाउन हुए हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ उसका ही पोलन ग्रेन उसके ऊपर जर्मिनेट हो पाएगा. दैट्स व्हाई हियर व्हाट इज हैपन, ऑल द अदर टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलन ग्रेन, all the other pollen grain of different species are now considered as wrong type and its own pollen grain get considered as right type of the pollen grain. So here so that here B, C, D, these pollen grain are wrong type and A type of this particular pollen grain are right type of the pollen grain. It's the same way when one of that, suppose that this one is nothing but a bee plant is there. अब ये कोई बी नाम का प्लांट है, अब इसके ऊपर में अलग अलग पोलन ग्रेन फॉल डाउन हुए हैं. तो जैसे यहाँ पर ये बी टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन फॉल डाउन हुए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है. लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस एंड सपोज दैट इन दिस पर्टिकुलर प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कैरिड आउट देयर. अब अगर इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला है, यानी ये प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके जो खुद के पोलन ग्रेन है यानी दिस वन बी टाइप, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट नहीं होंगे. ओनली दिस अदर टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन गेट जर्मिनेट, वो दूसरे पोलन ग्रेन उसके ऊपर जर्मिनेट होंगे. दैट मीन्स इसके खुद के पोलन ग्रेन अब यहाँ पर रॉन्ग टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन हो गए, और जो दूसरे पोलन ग्रेन से दूसरे स्पीसीज दूसरे प्लांट के वो पोलन ग्रेन अब क्या है, राइट टाइप ऑफ दी पोलन ग्रेन है. सो दैट इज अ डिसीजन. ये जो राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन है वो नेचर ऑफ प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन चाहता है तो उसके खुद के पोलन ग्रेन राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन होंगे. अगर वो प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन चाहता है तो उसके खुद के पोलन ग्रेन अब इसके ऊपर में रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन हो जाएंगे. दैट इज द केस. नाउ सो दिस वन इज नथिंग बट राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन. एक बार ये डिसीजन हो गया कि दैट इज द रॉन्ग टाइप एंड दैट इज द राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन, देन व्हाट इज हैपन दैट, एक बार अगर ये डिसीजन हो गया कि ये राइट है तो जो राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन है दैट कैन ओनली जर्मिनेट एंड द रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन दैट कैन नॉट गेट जर्मिनेट. इसका मतलब क्या है, जो रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन है उसे जर्मिनेशन करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं बनाए जाएंगे. तो वो कैसे होगा, बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल कंपोनेंट्स. कुछ केमिकल कंपोनेंट को छोड़कर उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा और पता किया जाएगा कि दैट इज द रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन, फिर उसको जर्मिनेट नहीं होने दिया जाएगा. और जो राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन है वो उस केमिकल कंपोनेंट को डिटेक्ट कर पाएगा और उसी पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया जाएगा जर्मिनेशन के लिए, या उसी का जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन होगा.
So here you say that those pollen grain now, अब इसके बाद भी और दो टाइप ऑफ दी pollen grain हो जाएंगे. Are the capacity of that particular pollen grain, उसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं. There are two terms, compatible pollen grains, compatible and incompatible. तो compatible pollen grain क्या है? That is the right type. और incompatible क्या है? That is the wrong type. तो compatible pollen grain can germinate, ये germinate होंगे, और incompatible pollen grain not germinate, ये germinate नहीं होंगे. तो एक बार ये डिसीजन हो गया कि दैट इज द राइट और रॉन्ग टाइप, ये सब पहले स्टेप से होगा. जो पहला स्टेप होता है पहचानने का, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉग्नाइजेशन. दिस पर्टिकुलर स्टिग्मा और दिस पर्टिकुलर pistil can recognize whether that particular pollen grain it is a wrong type or it is a wrong type, and that is the first step that we call as recognition. एक बार recognition हो गया, एक बार recognition हो गया, उसके बाद आता है rejection और acceptance. जैसे मैंने कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर होना है तो उसके खुद के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट किया जाएगा और जो दूसरे के पोलन ग्रेन है उन्हें क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा. So that is the next step, that is nothing but the एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. एक बार जिन्हें रिजेक्ट किया गया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज ऑफ द केमिकल सिक्रेशन दिस पोलन ग्रेन कैन नॉट जर्मिनेट, बट जिसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, सो दैट पर्टिकुलर पोलन ग्रेन विच एब्सॉर्ब sugary substance which have been secreted by this particular stigma that can absorb and volume inside this pollen grain get increases. So because of that increasing volume of this intine inside that particular intine get comes out through one of the germpore. आपको मालूम है एक से ज्यादा germpore होते हैं pollen grain के ऊपर. Out of that one of the germpore, from one of that particular germpore, intine get comes out along with cytoplasmic content and generative cell and vegetative cell nucleus. Now I already told you that at the time of the pollination, जब ये pollination होता है तो pollen grain या तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है या तो वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है. दोनों स्टेज में वो ट्रांसफर कर सकता है. ज्यादातर प्लांट्स में वो 2 सेल्ड सेल में आता है, लेकिन और ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें वो 3 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है. सपोज दैट दिस वन इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन इज देयर. अब ये पोलन ग्रेन है, अब ये पोलन ग्रेन के ऊपर ये मान लीजिए दिस वन इज नथिंग बट द एग्जाइम. सो हियर देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ जर्मपोर. ये जर्मपोर्स है और यहां पर है generative cell. So this one is nothing but a vegetative cell is there, vegetative cell nucleus is there. So this one is nothing but a vegetative cell nucleus. So this one is the generative cell. Now what has happened that after the absorption of that particular sugary substance, so this intine get comes out. ये intine अब बाहर निकलेगा in this form through that particular germ pore. तो यहाँ पर at this particular tip there should be a presence of tube nucleus. तो ये tube nucleus है. So tube nucleus is nothing but this vegetative cell nucleus get comes here and generative cell now comes here. In 2 celled stage that is happen. But what is happen in 3 celled stage? अगर वो 3 celled stage है तो इसके अंदर क्या होगा? Generally, so this one is nothing but exine there, this one is intine, and whenever that particular pollen tube get produced, so directly at this tip there should be a presence of tube nucleus. यहाँ पर तो वो tube nucleus आएगा. At this here there should be a ट्रांसफर ऑफ 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. ये 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स डायरेक्टली आएंगे. नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स ये है नॉन मोटाइल, खुद नहीं जा सकते इसलिए उन्हें लेके जाया जाता है. सो दिस वन इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डायरेक्टली. लेकिन यहां पर क्या होगा? इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज हैपेंड दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ट्यूब न्यूक्लियस इज देयर. नाउ दिस जनरेटिव सेल गेट कम्स हियर. तो यहां पर ये जनरेटिव सेल आएगा. सो दिस वन इज द जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल तो डायरेक्टली देखो यहां पर ये 3 सेल्ड स्टेज है, 3 सेल्ड स्टेज वाला पोलन ग्रेन है और यहां पर ये 2 सेल्ड स्टेज वाला पोलन ग्रेन है. तो 2 सेल्ड स्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब के अंदर ये जनरेटिव सेल आएगा. यहां पर डायरेक्टली आप अगर देखेंगे तो 2 मेल गैमेट्स आएंगे. इसके बाद जनरेटिव सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा. इसके बाद क्या होगा? यहां पर ये जनरेटिव सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगा और ये मियोटिक डिवीजन होने के बाद इस जनरेटिव सेल का कन्वर्शन होगा फिर 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स में. फिर वो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट along with this particular pollen tube move up to the ovary. Now
After the acceptance it is happening, and after the rejection that particular pollen grain cannot get germinate. So that we know. Now what has happened then? After the germination, this particular pollen tube get enter within the ovary. ये ओवरी के अंदर जाएगी through that style. तो style it is not a hollow cylinder, it is not a hollow tube, it is a compact. ये compact है, ये solid है. इसके कारण क्या होगा? So that this one is nothing but stigma. So here there should be a presence of ovary. यहाँ पर ये ovules, ये ovules, और यहाँ पर ये pollen grain है. अब ये pollen grain germinate हो गया. Germinate होने के बाद यहाँ से pollen tube आया. Now what is happening that? तो ये जो पूरा का पूरा जो स्टाइल है, ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट होता है इस प्रकार से. These are all the compact cells. It is solid. अब ये पूरा का पूरा सॉलिड है. अब यहाँ से तो कोई हॉलो सिलेंडर या हॉलो ट्यूब तो है नहीं, तो इसके लिए क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग दैट दिस पर्टिकुलर पोलन ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब आ रहा है, सबसे पहले दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल दैट सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर इन दिस स्टाइल. पोलन ट्यूब का जो टिप होता है, ये पूरे के पूरे स्टाइल के अंदर रहने वाले जो कॉम्पैक्ट टिश्यूज है उन्हें डिस्ट्रॉय करता हुआ अंदर जाए, डिस्ट्रॉय करेगा. और एक बार जैसे ये पोलन ट्यूब, अब इनको डिस्ट्रॉय करते हुए अगर ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर तक आए, ट्यूब न्यूक्लियस है, यहां दो मेल गैमेट्स हैं, इसके बाद होगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब विद इन ओव्यूल. वी नो दैट द डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर ओव्यूल, ओव्यूल का डायग्राम आपको मालूम है. व्हाट इज दैट? So this one is nothing but the embryo sac. So this one is nothing but the nucellus. Here I will draw the integument. So this one is nothing but the inner integument. So this one is nothing but the outer integument. ये outer integument, ये outer integument है. So this one is nothing but the nucellus. तो यहाँ पर ये फनिकल हो गया. So this one is nothing but the micropyle. ये micropyle है. So this one is the funicle. ये funicle है. इसके बाद में these are nothing but the integuments, ये integuments है. So this is the nucellus, ये nucellus है. So this is actually the chalaza is there, and here there should be a presence of antipodals है. ये antipodals है. Secondary nucleus is there, तो यहाँ पर ये secondary nucleus है, और यहाँ पर है एक, और उसके बाद में यहाँ बाजू में दो synergids. ये है synergids and this one is nothing but the egg. आपको मालूम होगा in that particular synergids there should be a presence of finger like projection at the base of this particular synergids है. So here there should be a presence of, so this finger like projection. तो यहाँ पर एक finger like projection structure होता है. Now what is happening there? After the entry of this particular pollen tube, जैसे ये pollen tube ओवरी के अंदर गया, तो इसके बाद ये pollen tube, मान लीजिए this one is nothing but ovule, ये ovule है. इसी का डायग्राम मैंने यहाँ पर बड़ा करके बनाया है. अब इसके अंदर एंटर करेगा. So what is pollen pistil interaction? Pollen pistil interaction is nothing but the all the events happening after the fall down of pollen grain up to the entry of pollen tube within the ovule. यानी पोलन ग्रेन एक बार स्टिग्मा के ऊपर गिरा, उसके बाद से लेकर वहां से लेकर उसका पोलन ट्यूब बनकर तैयार होकर वो ओवरी के ओव्यूल के अंदर तक कैसे जाता है, ये सारी बातों का लेखा जोखा जो भी है, दैट इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. तो सबसे पहले होता क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलन ग्रेन, पहला स्टेप होता है. रिकॉग्नाइजेशन में वेदर दैट पर्टिकुलर पोलन ग्रेन इज द रॉन्ग टाइप और वेदर इट इज अ राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन. क्योंकि पॉलिनेशन में देयर शुड बी चांसेस ऑफ बोथ राइट एंड रॉन्ग टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन गेट फॉलोअर. इट इज नॉट श्योर मेथड. Then after the acceptance or rejection, the accepted pollen grain, that means the compatible pollen grain get accepted and this particular pollen grain get only allowed to germinate. एक बार वो germinate हो गया तो उसके बाद ये pollen tube अंदर आता है और उसके बाद वो ovule के अंदर जाता है. तो ये ovule के अंदर जाने के भी 3 मार्क्स होते हैं. डायरेक्टली ये कहाँ से जा सकता है? Suppose that this one is nothing but ovule I drawn here. Now अब यहाँ से मैं ये pollen tube निकालता हूँ. ये pollen tube आया है यहाँ पर. So this particular pollen tube get come in this way here. ये पोलन ट्यूब यहां से भी आ सकता है. अब ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होते हुए देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल तक आया, फिर इसके बाद में ये वन ऑफ द सिनर्जिड की तरफ गया और वन ऑफ द सिनर्जिड में यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से दैट यू कॉल्ड ये सिनर्जिड्स में फिलिफॉर्म एपरेटस इज देयर. सो यहाँ पर ये फिलिफॉर्म एपरेटस है, फिलिफॉर्म प्रोजेक्शंस आ रहे हैं.
सो ये एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होगा, फिर ये डिस्चार्ज करेगा एंड दिस टू मेल गैमेट गेट रिलीज इनसाइड दैट ओव्यूल, इनसाइड दैट पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक। इसके बाद रिलीज होगा दोनों मेल गैमेट्स का जो कि नॉन मोटाइल है। ये तो वो एंट्री पॉइंट है जहां पर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। त्याला काय म्हणायचं? पोरोगॅमी। पोरोगॅमी मीन्स एंट्री ऑफ pollen tube inside embryo sac through micropyle, यानी पोलन ट्यूब जो एंटर हुआ ओव्यूल के अंदर वो थ्रू द माइक्रोपाइल हुआ, दैट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। एक बात ध्यान, ओव्यूल के अंदर वो तीन वे से तो आ सकता है, जैसे मैंने पहला वे बताया दैट इज नथिंग बट दी थ्रू द माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल से जब भी आता है दैट इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। अगर वो डायरेक्टली यहां से ना जाते हुए डायरेक्टली अगर वो इधर से आता है, फिर यहां भी आने के बाद में ये यहां से होते हुए फिर अंदर से जाएगा इधर से, ये वाला मार्ग भी है। अब यहां पर देखो ये जो पोलन ट्यूब है ये डायरेक्ट चलाजा से आया है, डायरेक्ट इट में गेट एंटर थ्रू दैट पर्टिकुलर चलाजा विद इन द ओव्यूल बट नॉट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के लिए उसे जाना होगा सिनर्जिड से ही, यानी अगर वो यहां से भी आता है, ये पोलन ट्यूब अगर यहां से भी आते तो इधर से आएगी और यहां से जाने के बाद आउट ऑफ दैट टू वन ऑफ द सिनर्जिड कैन एक्सेप्ट दैट वन एंड थ्रू दैट पर्टिकुलर फिल्म ऑफ apparatus it may get enter the entry of pollen tube within the ovule through the chalaza, that is called as चलाजोगैमी। इसे चलाजोगैमी कहते हैं। तो ये दूसरा मार्ग है। तीसरा मार्ग भी है, अगर मान लीजिए दिस पर्टिकुलर पोलन ट्यूब गेट एंटर कम हियर, वो इधर से आ रही है और यहां से एंटर होते, देखो दिस इज द थर्ड वे। और यहां से भी आने दीजिए, वो किधर से भी आने दीजिए, लेकिन वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जब जाएगी तब वो वन ऑफ द सिनर्जिड से जाएगी। अब ये जो मार्ग है, यहाँ पर जो एंट्री हो रहा है वो हो रहा है थ्रू द इंटीग्यूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज मेसोगैमी। सो व्हाट इज द टाइप? कुछ भी टाइप रहने दीजिए, जैसे वो पोरोगैमी हो, मेसोगैमी हो या फिर चलाजोगैमी। तो चलाजोगैमी में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल के अंदर तो जा रहा है, वो चलाजा से जा रहा है। मेसोगैमी में क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जा रहा है, वो इंटीग्यूमेंट से जा रहा है। और पोरोगैमी में क्या होता है कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होते हुए अंदर जाता है। तो तीन है, पोरोगैमी है, मेसोगैमी है एंड चलाजोगैमी। व्हाटएवर इट मे बी द गैमी इज देयर, कुछ भी रहने दीजिए, लेकिन वो जब एम्ब्रियो सैक के अंदर जाएगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जब एंटर होगा, तब उसे जाने से पहले वो जहां से भी जाएगा, सो दीज आर नथिंग बट द टू सिनर्जिड्स। और ये सिनर्जिड्स ही सिस्टर सेल्स होते हैं और इनके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड, वो वहीं से होते हुए फिर अंदर जाएगा। और एक बार ये पोलन ट्यूब अंदर चला गया, फिर उसके बाद यहाँ पर पोलन ट्यूब बर्स्ट होगा और उसके अंदर रहने वाला साइटोप्लाज्म कंटेंट अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट गेट एंटर इनसाइड दिस embryo sac and then the fertilization get carried out. So our topic is nothing but the pollen pistil interaction. In pollen pistil interaction we have to discuss all the events up to the entry of pollen tube. हमें इस pollen pistil interaction में फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, that is the next part, वो तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में एक बार पॉलिनेशन होने के बाद वो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे जाता है या एंट्री होता है, वहां तक के जितने भी इवेंट्स थे दैट इज कंसिडर्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो सबसे पहला जो इवेंट होता है कि वी कैन नॉट नो दैट राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर बोथ टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन गेट फॉल ओवर द स्टिग्मा। इनमें से रिकॉग्नाइजेशन होगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करेगा वेदर इट इज राइट और रॉन्ग टाइप, और जो भी राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन होगा उसे ही फिर वो चांस मिलेगा, यानी उसे वो एक्सेप्ट करेगा। सो दैट इज द कंपैटिबल पोलन ग्रेन। और जो एक्सेप्टेड पोलन ग्रेन्स है, अब ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस होगा कैसे? जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे में कोई पर्सन आया और वो आपके घर में अंदर आना चाहता है, तो आप अगर पहचानते हो उसे तो आप एंट्री करेंगे, अगर वो अननोन है तो उससे पूछेंगे, उसे डिस्कार्ड कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो ये जो स्टिग्मा है, अब ये पूछेगा तो नहीं ना, लेकिन ये क्या करता है, दैट में गोइंग टू सीक्रेट सम केमिकल कंपोनेंट। अब वो केमिकल कंपोनेंट उसके खुद के पोलन ग्रेन के साथ अगर वो मैच होते हैं, अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन करना चाहता है तो जिसके साथ ये केमिकल कंपोनेंट मैच हो रहे उसे डिस्कार्ड करेगा।
और जिसके साथ नहीं मैच हो रहा है उसे वो एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो अगर उसे मान लीजिए क्रॉस पॉलिनेशन करवाना, सेल पॉलिनेशन ही करवाना है, जब ये केमिकल कंपोनेंट रिलीज करेगा किसी स्टिग्मा के ऊपर, उसके खुद के पोलन ग्रेन के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है वो उसे एक्सेप्ट, मतलब दोनों का मैचिंग होगा तो उसे ही वो क्या करने देगा, फिर एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का, today's most of that particular botanists or biologists, they find out what that particular different kinds of the chemical components which carried out this particular interaction or acceptance of the rejection of the pollen grain over the stigma, and this concept is very much useful in plant hybridization program where only cell pollination get carried out. In such a plant we can carry out cross pollination by identifying such a type of that particular chemical components which restrict or which rejected this particular pollen grain. So this practice which may be many more beneficial to the agricultural person or the horticulturist in the future days. For that purpose botanists get working. So today I can stop here. Tomorrow we will discuss about the next topic, that is nothing but the fertilization. Thank you.